দিল্লির লালকেল্লায় বিস্ফোরণের ঘটনায় যোগ মিলেছে ফরিদাবাদের এক ঝাঁক ডাক্তারের, যারা জিহাদি কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এরই মধ্যে একদম প্রথম সারিতে রয়েছে একজন মহিলা ডাক্তারের নাম। ফরিদাবাদের আল ফালা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের ডাক্তার শাহিন সাইদের সঙ্গে এই জিহাদি মডিউলের আরেক ডাক্তার মোজাম্মেল শাকিলের সঙ্গে আলাপ হয়। দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলেও জানা গিয়েছে। একজন ডাক্তার হয়েও কিভাবে জড়িয়ে পড়লেন জিহাদি কার্যকলাপে ডাক্তার শাহিন সাইদ, যদিও এই বিষয়ে কিছুই বলতে পারেনি ডাক্তার শাহিন সাইদের প্রাক্তন স্বামী ডাক্তার জাফর হায়াত। 2015 সালে জাফর ও শাহিনের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। বিয়ের পর শাহিনের মধ্যে সেরকম কোনো পরিবর্তন দেখতে পাননি বলেই জানিয়েছেন তার প্রাক্তন স্বামী। একই সঙ্গে তিনি জানান তার প্রাক্তন স্ত্রীর অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। জাফর হায়াত আজ তাককে জানান যে এই শাহিন ইউরোপের কোনো দেশে সেটেলড হতে চাইছিল, সেখানে গিয়ে থাকতে চাইছিল। জাফর হায়াত প্রফেসর ছিলেন। জাফর হায়াত বলেন যে শাহিন যেহেতু প্রফেসর ছিলেন তাই হয়তো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। একই সঙ্গে তিনি জানান শাহিন তাকে একবার বলেছিল ইউরোপীয় কোনো দেশে গিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হতে চান। অস্ট্রেলিয়া ছিল শাহিনের প্রথম পছন্দ ইউরোপের বাইরে। যদিও শাহিনের প্রাক্তন স্বামী জানান তিনি শাহিনের এই প্রস্তাবে রাজি হননি। একই সঙ্গে ডক্টর জাফর জানান এদেশেই সবকিছু ঠিকঠাক চলছে, তাই তিনি বিদেশে যেতে চান না। এখানে পরিবার পরিজনেরা রয়েছেন, আত্মীয় স্বজনরা রয়েছেন, সেই কারণে তিনি এখান থেকে বেরোতে চান না বলে শাহিনকে জানিয়েছিলেন। বিবাহ বিচ্ছেদের পর তাঁদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ ছিল না বলে জানিয়েছেন ডক্টর জাফর হায়াত। ধৃত শাহিন সাইদের প্রাক্তন স্বামী ডক্টর জাফর হায়াত কি বলছেন শুনুন তার কথা। मेरा कोई रिएक्शन था, मेरा कोई, चूंकि मेरा कोई इमोशनल रिलेशन से रहा नहीं और बहुत पहले तलाक हो चुकी 2012-13 में, तो उसके बाद से मेरा कोई उनसे कोई कंटेक्ट नहीं रहा। पहली मुलाकात आपकी उनकी कहाँ हुई थी? और मुलाकात तो बेसिकली अरेंज मैरिज थी, तो मुलाकात वगैरह तो ही नहीं थी। घर वालों ने अरेंज किया था, उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद उनके, मैं तो सर्विस में था ही, और उनकी आते ही तुरंत फौरन सर्विस लग गई यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, GSV मेडिकल कॉलेज कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। हम साथ साथ रह रहे थे। तो ये बताइए कि किस वजह से आप लोगों की लड़ाई हुई या जो डिफरेंसेस आए कि आप लोगों को तलाक? कोई डिफरेंस हम लोग आपस में कुछ नहीं था, कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोग में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। कॉन्फ्लिक्ट था कुछ होगा उसके बाद ही तलाक हुआ? उनका ये था कि चूंकि वो प्रोफेसर थी तो उनसे एक्सपेक्टेशन थोड़ा शायद ज़्यादा रहे होंगे, तो इस वजह से वो कई बार जैसे ऑस्ट्रेलिया या यूरोप की मेरे से एक बार बात की थी उन्होंने कि यार ऐसा है कि चला जाए उधर, दोनों लोगों को सर्विस इजीली मिल जाएगी और हम लोग आसानी से अच्छे से रहेंगे वहाँ पे। तो उनका मन था कि कहीं बाहर शिफ्ट हुआ, अच्छी लाइफ गुजारेंगे। बाकी तो मैंने कहा कि यहाँ तो ठीक ठाक सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो ऐसी है नहीं, सब लोग बच्चा अच्छे से रह रहे थे हम लोग। तो देश के बाहर शिफ्ट होना चाहती थी? नहीं, देश के बाहर वही है, यूरोपियन कंट्रीज में यूजुअली जाना आदमी पसंद करता है। ऑस्ट्रेलिया का उनका इरादा ज़्यादा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उनको अच्छी जगह लगती थी, पसंद थी उनको। अब मेरे से एक बार बात हुई, बहुत डिटेल में कोई बात नहीं हुई है। मुझसे ये कहा कि आप चलना पसंद करोगे, ज़्यादा अच्छा वहाँ पे चांसेस बहुत अच्छे हैं, हम लोगों का अच्छा फ्यूचर रहेगा। मैंने बोला यार यहाँ पे कौन सा बुरा, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। भारत में रहना चाहते थे वो? और क्या, दूसरी चीज़ के सारे रिलेशन यहाँ पे हमारे हैं। ये बताइए कि जो बातें सामने आ रही हैं कि रेडिकलाइज जो है वो किया गया, या जो तमाम इस तरीके की वो गतिविधियों में संलिप्त थी, आप इतने साल साथ में रहे, तब आपको ऐसा कुछ नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और हम लोग एक लिबरल लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लोगों के बीच में हम लोग रहे हैं, कभी इस तरह कोई ऐसा नहीं था हम लोग। ডক্টর শাহিন সাইদের প্রাক্তন স্বামী জানান শাহিনের ভাই পারভেজও ডাক্তার, ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা হতো, কারণ সেও ডাক্তারির ছাত্র ছিল। এখানে আসতো, দেখা হতো, তাও খুবই কম, কারণ ডাক্তারি লাইনে সময় খুবই কম পাওয়া যায়। ম্যারেজ ব্যুরোয় বিজ্ঞাপন দিয়েই শাহিনের সঙ্গে তার বিয়ে হয় বলে জানান ডক্টর জাফর হায়াত। ধর্ম নিয়ে খুব কমই কথা হতো শাহিনের সঙ্গে। তাদের 2 সন্তান রয়েছে, তারা শাহিনের প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গেই থাকেন জানিয়েছেন ডক্টর জাফর হায়াত। শুনুন। इसके साथ थे इतना टाइम और इस तरीके की जो चीज़ें में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए रिलेशन नहीं है, इमोशंस नहीं, तो शौक का कोई क्या सेंस है।
कोई मतलब नहीं, इतना साल गुजर गया है, तो हाल की बात होती तो शायद कुछ शौक लगता। ये बताइए कि 2013 के बाद बताया जा रहा है कि यहाँ से वो जब अपनी नौकरी छोड़ के अचानक चली गई और किसी को बताया भी नहीं और उसके बाद लगभग गायब हो गई। एजेंसीज का कहना है कि उसके बाद यही वो समय था जब वो इन लोगों के टच में आई, ऐसे लोगों के कि वो रेडिकलाइज हुई। आपको कहीं जानकारी मिली कि 2013 के बाद? नहीं, मेरे पास मेरे नॉलेज में कुछ भी नहीं था, मुझे इवन यहाँ तक नहीं मालूम था कि वो है प्रेजेंट टाइम में है कहाँ। इनके जो भाई हैं परवेज, जिनके घर से जो है तमाम तरीके के जो एक्सप्लोजिव हैं वो बरामद हुए हैं, उनसे आपकी बातचूत होती थी? उनका नेचर कैसा था, किस तरीके का? इस वक्त स्टडी कर रहे थे, MBBS कर रहे थे, फिर MD किया है, तो बातचीत तो बहुत ही कम होती थी, क्योंकि अब भाई डॉक्टर लाइफ में तो बहुत कम टाइम मिल पाता है। MBBS के दौरान भी आपने देखा होगा शायद, या MS के दौरान तो बहुत बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ होती है, तो आदमी इन सब चीज़ों में ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकता। दूसरी चीज़ ये है कि उनके, जैसे आपने भाई से कहा, तो भाई से कभी कभी कांटेक्ट हो जाता था, कभी आते थे, कभी घर पे एक आध दिन अपना रुकते थे, चले जाते थे। तब आपको भाई से बातचीत करके भी नहीं लगा कि इस तरीके का पूरा कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कि अपने आप में रहते ज़्यादा बात नहीं करते थे? ना, बिल्कुल नॉर्मल सब रहते थे, कोई बात, कोई एक्स्ट्रा कोई इस तरह की बात नहीं होती। परिवार से जो है, आपने बताया कि अरेंज मैरिज हुई थी, किस तरीके से आपका परिवार जो है वो रिलेशन में आया, कैसे बातचीत हुई और किस तरीके से आप लोग की शादी हुई? बातचीत तो देखिए, उसमें जो मैरिज ब्यूरो है उस पे दिया था हमने अपना एडवर्टीजमेंट, तो उसमें उनकी तरफ से भी कुछ कॉल्स आई थी, तो हम लोग उससे मिलने गए, हमारे घर वाले, फिर उनको पसंद आ गया रिश्ता, तो शादी कर लिया। कभी इस तरीके से कोई ऐसी बातचीत नहीं। आखिरी सवाल आपसे लूंगा, क्या इस तरीके की बातचीत होती थी जो तमाम धर्म के ऊपर या फिर इस तरीके का? बिल्कुल बहुत कम। मतलब धर्म से रिलेशन बहुत बड़ा, आप समझ सकते हैं कि हम लोग डॉक्टर हैं, हमेशा सिर्फ बरसों से यहीं पे रहे हैं। आपके बच्चे भी थे, शाहीन के? 2 बच्चे। वो कहाँ हैं? हाँ, मेरे पास है। आपके पास है? क्या उनको पता लगा जब इस बारे में? वो बहुत छोटे थे, वो एक 7 साल का था, एक 4 साल का था, उन लोग क्या पता लगेगा। এই শাহিন সাইদ, যার ওপর নাকি দায়িত্ব ছিল ভারতে মহিলাদের জামাত ব্রিগেড তৈরি করা, যেটাকে বলা হচ্ছে জামাত উল মোমিনিন, মানে মহিলাদেরকে নিয়ে একটা ব্রিগেড তৈরি করার কথা ছিল, এবং জৈশ-ই মোহাম্মদের সুপ্রিম কমান্ডার তার বোন সাদিয়ার সঙ্গে এই শাহিনের নাকি ডিরেক্ট কানেকশন ছিল, এবং সাদিয়ার থেকেই ডিরেক্ট বিভিন্ন রকমের অর্ডার পেত, এবং তারপর সে এই কাজগুলো এখানে তৈরি করার চেষ্টা করছিল। মানে মহিলাদের নিয়ে একটা নাশকতামূলক একটা জিহাদি ব্রিগেড তৈরি করার মাথা ছিলেন এই শাহিন, ডক্টর শাহিন, হোয়াইট কলার টেররিস্ট, পরিষ্কার ভাষায় বলা যায়। আপনাদের মতামত কি? এদের থেকে সাবধান থাকবেন, এবং অবশ্যই আপনাদের আশেপাশে যদি এই রকম হোয়াইট কলার জিহাদিদের আপনারা বুঝতে পারেন, আঁচ করতে পারেন, তাহলে অবশ্যই স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।